بلٹن کی شروعات آج کی بڑی خبر کے ساتھ کریں گے۔ ڈی لمیٹیشن کمیشن 4 روزہ دورے کے لیے آج جموں کشمیر پہنچ گیا ہے۔ سری نگر میں پہلے دن کمیشن نے مختلف سیاسی لیڈروں سے ملاقات کی۔ پی ڈی پی اور ANC نے اعلان کیا ہے کے مطابق کمیشن سے ملاقات سے گریز کیا ہے۔ علاقائی اور قومی سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں نے جموں کشمیر میں حد بندی کے عمل کے سلسلے میں اپنے موقف اور نقطہ نظر سے کمیشن کو آگاہ کرایا۔ بی جے پی کو چھوڑ کر کسی بھی پارٹی کا وفد کمیشن سے ہوئی میٹنگ سے مطمئن نظر نہیں آیا۔ کانگریس پارٹی لیڈروں نے تو یہاں تک کہا کہ اگست 2019 میں کیے گئے فیصلوں کو واپس لینے تک یہ ساری کارروائیاں اور سرگرمیاں فضول ہیں۔ کانگریس نے اس مشق کی معنویت پر بھی سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ کچھ ریجنوں کے ساتھ بہت پہلے ناانصافی ہوئی تھی، آج وہ ناانصافی نہ ہو۔ کچھ ڈسٹرکٹوں کے ساتھ بھی بہت ساری ناانصافی ہوئی تھی، آج وہ ناانصافی نہ ہو۔ اور خاص کر کے ہمارے گجروں کے ساتھ جو 12-13 لاکھ ووٹرز ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ہم نے کہا کہ کرنا میں جو گجر زیادہ ووٹرز ہیں، گریز میں جو ہے زیادہ گجر کے ووٹرز ہیں، ڈورو میں آپ دیکھیے ڈورو کتنی فار فلنگ ایریا ہے، ہم نے یہ ایس ٹی کے لیے ریزرو ہونی چاہیے۔ نور آباد جو پہاڑی پہ مشتمل ہے، ہم نے کہا یہ ریزرویشن میں ہونی چاہیے۔ پی ڈی پی نے بائیک آؤٹ کیا ہے اس میٹنگ کا، ANC نے بھی بائیک آؤٹ کیا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح وقت تھا یہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن کا، جبکہ 2026 تک پورے ملک میں ڈیلیمیٹیشن پروسیس بند کیا گیا ہے؟ دیکھیے، جب بھی کوئی لوگوں کے ہت کی بات ہوتی ہے تو پی ڈی پی ہر روز بائیک آؤٹ کرتی ہے۔ جب تک نہ واپس 5 اگست کے فیصلے، خاص کر ریسٹوریشن واپس نہیں ہوگا، فل اسٹیٹ ہوڈ نہیں آئے گا، ان ایکسرسائزز کا جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کوئی خاص معنی نہیں ہے۔ اور کانگریس کے لیے معنی ہے سر؟ کانگریس کے لیے معنی ہے ڈیلیمیٹیشن؟ نہیں، کانگریس تو پبلک کا ایک حصہ ہے۔ کمیشن نے سیدھے انٹروڈکٹری کہا کہ ہم کھلے دل سے آئے ہیں اور ہم آپ سے سجھاؤ جاننا چاہتے ہیں کیسے اس ڈیلیمیٹیشن پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آگے بڑھائیں۔ تو ہم نے کہا 1.5 سال چونکہ آپ اس ایکسرسائز پر تھے اور 1.5 سال تک آپ نے کن سے مشورے لیے، کن سے رائے لی، کیا خاکہ بنایا، پہلے ہمیں خاکہ دکھائیے۔ آپ نے پاپولیشن کو کیا کنسیڈریشن رکھی، ایریا کو، ٹیرین کو، کمیونیکیشن کو، ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو، جو بنیادی جو انگریڈینٹس ہے ڈیلیمیٹیشن کمیشن کو دیکھنے کے لیے۔ ورنہ اگر آپ ان سارے میرٹس کو درکنار رکھتے ہو اینڈ یو آر گائیڈڈ بائی سم پولیٹیکل پارٹی، تو اس گائیڈنس کے مطابق جو آپ نے بنایا ہوگا وی ول ناٹ کنٹریبیوٹ ان دیٹ۔ لوگ اس پر چرچا کر رہے ہیں کہ اگر پورے دیش میں 2026 تک ڈیلیمیٹیشن کمیشن ڈیفرڈ ہے، جموں کشمیر میں 2021 میں ہی کیوں؟ پردھان منتری نے لگاتار گلا پھاڑ کے کہا ہے کہ ایک ودھان، ایک پردھان، ایک سمویدھان، تو پھر یہاں آپ کیا کمیونیکیٹ کر رہے ہو؟ بات تو بڑے دوستانہ ماحول میں ہوئی۔ ہم نے سب سے پہلے بات بتا دی کہ جو باہر باتیں اس ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے بارے میں ہو رہی ہیں کہ سب کچھ لٹنے والا ہے، ہم نے وہ بات بتا دی انہیں کہ آپ کا رپورٹ جب باہر آئے گا اس سے لوگوں میں نفرت نہیں، دراڑ نہیں، یونٹی پیدا ہونی چاہیے۔ لوگوں کے جو اسپریشنز ہیں وہ پورے ہونے چاہیے۔ ہم نے کہا کہ یہ رپورٹ جب پبلش ہوگا، ایسا نہ ہو کہ یہ رپورٹ پبلش ہونے کے ساتھ ہی الیکشن کا اعلان ہوگا، ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بعد فل اسٹیٹ ہوڈ جموں کشمیر کو ملنا چاہیے۔ ہم نے کہا کہ یہ ڈیلیمیٹیشن آپ یونین ٹیریٹری کے لیے کر رہے ہیں۔ یونین ٹیریٹری کا جہاں تک تعلق ہے، یہ ری آرگنائزیشن ایکٹ آف 2019 کے تحت یونین ٹیریٹری بنی ہے جموں کشمیر۔ جہاں تک ری آرگنائزیشن ایکٹ کا تعلق ہے وہ ہماری نظروں میں انکانسٹیٹیوشنل ہے، غیر آئینی ہے اور ہمیں ناقابل قبول ہے وہ ری آرگنائزیشن ایکٹ۔ پی ڈی پی نے ڈی لمیٹیشن کمیشن سے ملاقات نہ کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ پارٹی نے کمیشن کو ایک خط لکھا ہے۔ پی ڈی پی نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ حد بندی کے ذریعے جموں کشمیر کے لوگوں کے باقی بچے سیاسی اختیارات بھی ختم کیے جا سکتے ہیں۔ پی ڈی پی نے الزام لگایا ہے کہ خاص سیاسی جماعت کو
फायदा पहुंचाने की असर-ए-नौ हदबंदी का अमल किया जा रहा है। मरकज के तर्ज अमल पर पीडीपी ने सख्त अल्फाज में बरहमी जाहिर की। कमीशन के पास कानूनी व आईनी मैंडेट न होने की पीडीपी ने बात कही है। पीडीपी ने कहा कि कमीशन की कारकर्दगी के नतीजे पहले से मंसूबाबंद तरीके से तय हैं। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद अवाम की जिंदगियों में सहूलत लाने की कोई भी कोशिश न होने पर पीडीपी ने मायूसी जाहिर की। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कमीशन से ना मिलने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से जो एक सिलसिला शुरू हुआ है 370 और 35A के एब्रोगेशन के साथ ही, तब से अभी तक जितने भी इकदाम सरकार की तरफ से लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं उसमें झलक रहा है कि जो जम्मू कश्मीर के आवाम है उनको उनके डिसम्पावरमेंट की तरफ वो लेके जा रहा है। जो 5 अगस्त को हुआ वो तो खैर था ही, उसके बाद जितने इकदाम हुए, चाहे वो हमारे डोमिसाइल इशूज़ को लेके हों, हमारी लैंड इशूज़ को लेके हों, हमारी रिसोर्सेज की जिस तरह से टेंडरिंग का प्रोसेस है, या फिर हमारे जो नए मुलाजमिन हैं उनकी किस तरह से वेरिफिकेशन होगी, उसको लेके अमेंडमेंट जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम को ही सस्पेक्ट बना के रख दिया है, या फिर रिसेंटली जो दरबार मूव को लेके फैसला आया है, डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है, इसको लेके भी काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खदशे हैं जिसको ज़ाहिर किया गया है आवाम की तरफ से। एक तो ये कि जबकि पूरे मुल्क में 2026 तक नहीं हो रहा डिलिमिटेशन, तो जम्मू कश्मीर को लेके इतनी तेज़ी क्यों? ऑल दैट हैज़ हैपेंड is suggestive of only disempowerment of the people of Jammu and Kashmir, and there is hardly anything that would inspire confidence among the people that this one thing could be any different. 12 में से 10 पॉलिटिकल पार्टी ने यहाँ पे जो हदबंदी कमीशन आया था उनसे मुलाकात करके अपने तासुरात उनके सामने रखे। ताहम जो बाजी है वो पीडीपी मार के ले गई, जिन्होंने कि इस मीटिंग का बाइकआउट कर दिया। दूसरी ओर अगर हम अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी बात करें तो उन्होंने भी इस मीटिंग में शमूलियत करने से मना कर दिया। जो लीडरान बाहर निकले यहाँ पे उनके तेवर थोड़े बदले नजर आए, क्योंकि जिन लीडरान से हमारी बात हुई उनका कहना था कि जब तक 2019 का जो स्टेटस था यहाँ पे उसको बहाल नहीं किया जाता तो ऐसी एक्सरसाइज कराना ये अभी सूदमंद साबित नहीं हो सकता है आम लोगों के लिए। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में ड्रोन हमले के खतरा से निपटने के मामले पर दिल्ली में एक अहम मीटिंग हुई। सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में वजारत दाखिला में ये मीटिंग हुई। मीटिंग में आईबी चीफ, जम्मू कश्मीर के डीजीपी, जम्मू के एडीजी पी समेत वजारत दाखिला के दिगर ओहदेदार शामिल रहे। सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के हुकाम भी मीटिंग में शामिल रहे। जम्मू में हुए ड्रोन हमले, उसकी जांच और मुस्तकबिल में ड्रोन हमलों के खतरात से निपटने के उमूर पर इस दौरान तबादले ख्याल किया गया। 1 घंटे से ज्यादा तक बातचीत का दौर चलता रहा। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी इंटरनेट, पाकिस्तान का टेलीकॉम सिग्नल और पाकिस्तानी सिम कार्ड से इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर में सरहद पार से दहशतगर्द तंजीमें कार्रवाइयां कर रही हैं। वजारत दाखिला ने ऐसी सरगर्मियों को रोकने की हिकमत अमली पर बातचीत की। मुख्तलिफ तकनीकी उमूर जेर बहस रहे। बताया जा रहा है कि दहशतगर्द पाकिस्तानी मोबाइल टावर का भी इस्तेमाल करके ड्रोन हमले कर सकते हैं। सरहद के करीब मौजूद पाकिस्तानी मोबाइल कंपनियों के टावर खतरनाक साबित हो सकते हैं। जिला वतन कश्मीरियों और हुकूक इंसानी के कारकुनों ने जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कौंसिल की इमारत के सामने मुजाहरा किया। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से मुनज़्ज़म अंदाज में कश्मीरियों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक को उजागर करने के मकसद से एहतजाज किया गया। पाकिस्तान की तरफ से इलाके में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर फौरी मुदाखलत की अक़वाम मुत्तहिदा से गुजारिश की गई। मुजाहिरीन ने कहा कि कश्मीरियों की आवाज़ को दबाने के लिए पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के कई लोगों और खित्ते की सरकर्दा शख्सियात के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए हैं। जुल्म व बर्बरियत के वाकयात मंजर-ए-आम पर नहीं आते हैं। आईएसआई तमाम इतलात को सेंसर कर देती है। मकबूजा कश्मीर में मुंतखब नुमाइंदों के पास हकीकी मानों में आईन साजी का कोई इख्तियार नहीं है। पाकिस्तान अपने हथकंडों से मकबूजा कश्मीर के वसाइल लूट रहा है। इमरान खान भी कश्मीरियों के फलाह के दावे करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की वहशियाना मजालिम की हकीकत सब पर आया हो चुकी है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को ये कहना था कि आप मुदाखलत करें और पाकिस्तान को प्रेशराइज करें कि वो ऐसे ड्रैकोनियन लॉज और ये जो अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हैं टू सुप्रेस द वॉइसेस ऑफ द सिविल सोसाइटी, इसको चेंज करें। ये बिहेवियर कम से कम 21st सेंचुरी में टोटली अनएक्सेप्टेबल है। हम ये समझते हैं कि कौमों को
उनको उनके वसाइल पे पूरा अख्तियार होना चाहिए। और जमहूरियत जो है वो कंडीशनल नहीं होती। डेमोक्रेसी में लोगों को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने और जिन लोगों को मुंतखब किया जाए उन्हें अपने लोगों की तामीर और तरक्की में और इलाके में अमन और सलामती के मसाइल पे फैसले लेने का हक हासिल होना चाहिए। ये जो गैर जमहूरी कुत्ते और ख़ास करके पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने जो एक मसलसल एक रवैया अख्तियार किया हुआ है जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही गैर जमहूरी है और उसकी वजह से पूरा खित्ता सफ़र कर रहा है। दिल्ली में कार चोरी के कश्मीरी कनेक्शन के मामले की जांच जारी है। कार सप्लायर शौकत अहमद से जम्मू कश्मीर के सीआईडी हुकाम पूछताछ कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की एक टीम शौकत को लेकर कश्मीर जाएगी। ये पता लगाया जाएगा कि उसने किस किस को चोरी की गाड़ियां फरोख्त की। शौकत सोपोर का रहने वाला है। शौकत दिल्ली की गाड़ियां कश्मीर में सप्लाई करता था। जराये के मुताबिक शौकत बार बार अपने साथी वसीम का नाम ले रहा है जो कारों को आगे सप्लाई करता था। अब इस बात की अभी जांच होनी है कि चोरी की गाड़ियां कश्मीर में कहां इस्तेमाल हो रही हैं। जांच एजेंसियां आइंदा कुछ दिनों में इस मामले में बड़ा इंकशाफ कर सकती हैं। दिल्ली पुलिस की जांच टीमें शौकत के बैंक अकाउंट्स की भी जांच कर रही हैं। पुलवामा के कंडी अगलर इलाके में जंगल स्मगलरों के हमले में महकमे जंगलात के रोमशी रेंज से वाबस्ता एक मुलाजिम शदीद तौर पर जख्मी हो गया। बीती रात जंगलात से काटी हुई इमारती लकड़ी को घोड़ों पर लाद कर स्मगल किया जा रहा था। महकमे ने कार्रवाई कर इमारती लकड़ी को जब्त किया। स्मगलरों के एक ग्रुप ने मुलाजमीन पर कुल्हाड़ियों से हमला किया। हिलाल अहमद नामी मुलाजिम शदीद तौर पर जख्मी हुआ। स्मगलरों की जानिब से मुलाजमीन पर हमला करना मामूल बन गया है। इंशाल्लाह जल्दी हमारे ऑफिसर्स भी इसमें हमारी मदद करेंगे और पुलिस डिपार्टमेंट भी हमें इसमें मदद करेंगे। जल्दी इंशाल्लाह इनके खिलाफ हम एक बड़ा प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। उनको टिम्बर स्मगलिंग रोकने के लिए हम बड़ा इकदाम कर रहे हैं। हमारे डीएफओ साहब भी हमें इसमें पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारे रेंज ऑफिसर साहिबान भी हमें इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। पीर की शाम बानिहाल के नजदीक बंकोट इलाके में ज़ेर तामीर रेलवे टनल में प्लास्टिक की वजह से छानाड़ के कई रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा। मकानों में दरारें पड़ गईं। लोगों ने फौरी तौर पर नुकसानात का तखमीना लगाकर मुआवजे का मुतालबा किया। लोगों का इल्जाम है कि रेलवे टनल तामीराती कंपनी की तरफ से टनल के अंदर गैर कानूनी तौर पर बारूदी धमाके किए जाते हैं, जिसकी वजह से दर्जनों मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा है। तहसीलदार बानिहाल की क़यादत में एक टीम ने इलाके का दौरा किया। इरकॉन के एक आला अफसर ने मकानों को नुकसान पहुंचने का एतराफ़ किया। तहसीलदार की यकीन दहानी के बाद लोगों ने काम दोबारा शुरू करने की इजाजत दी। इधर तो हमारे मकान को देखो हालत क्या है। यहाँ कोई भी नहीं आते हैं, कोई देखते नहीं है। कल हम बाल बच गए, मुश्किल से बच्चे 12-1 बजे तक घर ही नहीं आते थे। इतनी चीखे चिल्लाया, पड़ोसी आए, जमा हुए, देखे, शुक्र उनका वो आए, उन्होंने समझाया बच्चों को, बोला कोई बात नहीं हम इधर ही हैं, अब इधर आएंगे देखेंगे हमारी हालत क्या है। ये देखते नहीं है, आते नहीं है। एक गरीब को क्या है उस वक्त यही मकान गिरे गए, हमारे मकान गिर गए। टंगमर के ज़ियारत बाबा रेशी में कायम ज़बाख़ाने से वाबस्ता लोगों ने वक्फ बोर्ड इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। ज़बाख़ाने की नीलामी, टेंडर निकालने और ठेके पर देने के सिलसिले में एहतजाज किया गया। ज़ियारत बाबा क़यामुद्दीन रेशी में कायम ज़बाख़ाने से काफ़ी लोग वाबस्ता हैं। ज़बाख़ाने को ठेके पर देने से इन्हें रोजगार से महरूम होने का खौफ है। लोगों ने वक्फ बोर्ड इंतजामिया से अपील की है कि वो फैसले को वापस लें या इन्हें किसी दूसरी जगह रोजगार फराहम करें। लोकलन हज मजूर अवकाफ मजूर करान कहें अवकाफ की तरफ तनख्वाह कहें तेल खोर चलान मिलान मजूर तक तो अमे अलाव यह चीज कि वन तुम नीव ठेकस मन बस तो और ज़बाख़ान तह नीव ठेकस मन वन जनाब रपियस 200 या रपियस 400 क्या हेको यह ठेकस मन नी। कुछ आदमी हैं यहाँ पे जो हमारे यहाँ काम करते हैं यहाँ पे, तो हमने सुना कि मतलब इसको ऐसे ये टेंडर दे रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है कुछ भी, क्योंकि गरीब आवाम ये कहाँ जाएगा। जी हाँ, हमारा रोजगार बिल्कुल खत्म होता है। हमने उनसे ऑलरेडी एक मीटिंग की है with regard to this quartering and how it can be organized, ताकि उनके रोजगार को भी असर ना पड़े और हमारे श्राइन्स को भी खदशा ना हो किसी डिजीज का और किसी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज का। ऑक्शन आउट करने से मुराद ये है कि अगर यही लोग ऑक्शन में आते हैं तो वी विल बी प्लीज्ड टू हैंड देम ओवर दिस।
Concern is how to make this slaughterhouse hygienic and how to fix responsibility.